Good afternoon, class 11 students. We were doing the chapter sequences series where we have completed one topic, AP. In this video, we will start with the next topic, geometrical progression under the chapter sequences and series. Now, what is geometric progression? Okay. For example, a series A1, A2, A3, A4 डॉट ओके एक सीरीज है. इफ पीछे वाला टर्म से आगे वाले टर्म का रेशियो, पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म का रेशियो, पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म का रेशियो अगर इक्वल हो, देन वी कैन से A1, A2, A3, A4 डॉट आर इन जीपी. जैसे एपी में माइनस करने से इक्वल आता था एंड इट इज नेम्ड एज कॉमन डिफरेंस. यहां पे रेशियो मारने से इक्वल आएगा, दैट इज नेम्ड एज कॉमन रेशियो. दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो. ओके, सो दीज आर कॉल्ड कॉमन रेशियो. दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस. अंडरस्टैंड? तो इसमें कॉमन रेशियो होना चाहिए. नाउ हाउ टू डिस्क्राइब अ जनरल एपी. एक जनरल एपी कैसा देखने में होगा? नॉट एपी, अ जनरल जीपी. अ जनरल जीपी लुक लाइक दिस. AR square, AR cube, AR4 and so on. This is in GP. A general GP look like this. Where what is the first term? A. What is the second term? AR. What is the third term? AR square. What is the fourth term? AR cube. So, what is the general term? TN. The general term formula will be A R to power n minus 1. See? 4 either 3 come. 3 either 3 minus 1, 2 minus 1. So n minus 1. This is the general term formula, okay, of AP. Clear class? समझ में आ गया? Okay. अब जहां पे ये R क्या है, इस R को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो. जो कॉमन रेशियो होता है कितना है? AK प्लस 1 बाई TK प्लस 1 बाई TK. एक आगे वाला बाई उसके पीछे वाला, और वी कैन से TK बाई उससे पीछे वाला TK माइनस 1. इधर 4 होगा तो 3 होगा, इधर 5 होगा तो इधर 4. ओके, नाउ सम स्पेशल जीपी. जैसे कुछ स्पेशल एपी था. व्हेन वी डीलिंग विद ओनली 3 नंबर्स व्हिच आर इन जीपी. ऐसा केस हमने पहले ही पढ़ा था. व्हेन वी डीलिंग विद ओनली 3 नंबर्स व्हिच आर इन जीपी, व्हिच आर इन एपी, वी राइट एज A minus D, AD. वैसे if there are 3 numbers in GP, so we write like this: A by R, A R. If we have 4 numbers in GP, तो क्या होगा? A by R cube, A by R, AR cube. वहां पे था A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. यहाँ पे A by R cube, A by R, AR cube. If say 5 numbers in GP, तब क्या होगा? A minus 2D था, यहाँ पे A by R square, A by R, AR square. क्लियर क्लास? कॉमन रेशियो क्या होगा? डिवाइड मार के देख लो. इससे इसको डिवाइड मारो, इससे डिवाइड. इस सीरीज में कॉमन रेशियो क्या है? AR by AR, A by R. इसमें AR by AR cube, R square is the common ratio here. इसमें AR by divided by AR square. Okay, इसमें R is the common ratio. So every series has a different common ratio. Don't think that this series has a common ratio R. This series has a common ratio R. Yes, this series is a common ratio R, but this series has a common ratio R square. तो ये R दिख रहा है, इसका मतलब ये मत सोचना कि कॉमन रेशियो R है. नहीं, डिवाइड मार के देखो कॉमन रेशियो क्या है. ओके, नेक्स्ट इफ आई से what is sum of n terms of a GP. एक जीपी का n टर्म्स का फॉर्मूला सम क्या है? तो ऐसे विल लुक लाइक दिस: A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब एंड सो ऑन प्लस AR टू पावर n माइनस 1. इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है A R टू पावर n माइनस 1 बाय R माइनस 1. ओके, this is one formula which is valid if the common ratio is greater than 1. There is one more formula, A 1 minus R to power n by 1 minus R, and this formula is valid when R is less than 1. So we will first focus on the questions of sum of a GP and general term of a GP.
Okay, so let's start with the question. This is all about the theory of the GP. Okay class, the first question under the topic GP. The m plus nth term and m minus nth terms of a GP are P and Q. That is, P is the m plus nth term and Q is m minus nth term, so that the mth and nth term are this and this. mth term under root PQ होना चाहिए, nth term is P into Q by P whole to power m by 2n होना चाहिए. So we are dealing with the GP whose two terms are given to you and you need to find some other two terms. This is a question we did in AP also. दो terms का वैल्यू दिया हुआ है, तुम्हें बाकी कुछ दूसरा निकालना है. So मुझे GP का फर्स्ट टर्म नहीं पता. So let for the GP, let the first term is A and the common ratio is R. So according to question, what are the things given to you? T m plus n is given to you P and T m minus n is equal to you Q. ठीक है, तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं. A r to power m plus n minus 1 is equals to P and A r to power m minus n minus 1 equals to Q. These are the two equations given to you and you need to find Tm and Tn. So to find क्या निकालना है? Tm निकालना है. तो what is T? A r to power m minus 1 and Tn निकालना है. What is T? A r to power n minus 1. These two things I need to calculate. Okay, प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू कैलकुलेट करने से वो आएगा, अंडर रूट पी क्यू आएगा, इसका कैलकुलेट करने से वो आएगा. तो इसको पहले हम डायरेक्ट सोचते हैं. इसको कैलकुलेट करने के लिए ए का वैल्यू चाहिए और आर का वैल्यू चाहिए. दो वेरिएबल नहीं पता, तो दो वेरिएबल की दो इक्वेशन गिवन है. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और आर का वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ डाल देंगे. दिस इज वन वे विच आई डिस्कस्ड इन एपी चैप्टर ऑल्सो. दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ए और डी निकाल लो. लेकिन मैंने फिर बताया था कि ए और डी निकालने से अच्छा सिर्फ डी निकालो. ए को बिना निकाल के भी हम सम कर सकते हैं. कुछ ऐसे यहां भी करेंगे. वी विल ओनली कैलकुलेट आर वैल्यू, वी विल नॉट कैलकुलेट द ए वैल्यू. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आई एम डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस. ए आर टू पावर m plus n minus 1, ए आर टू पावर m minus n minus 1 is equals to p by q. ए कट गया. सो व्हाट इज r? m plus n minus 1 minus m plus n plus 1 is equals to p by q. ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एम प्लस एन. इधर क्या प्लस 1 माइनस 1 कट गया, एम कट गया. तो r टू पावर 2n इक्वल्स टू p बाई q. अब नया चीज सीखो, जब ये पावर उस तरफ जाता है तो ये रेशियो आ जाता है 1 by 2n. जैसे स्क्वायर उस तरफ जाता है तो 1 by 2 बन जाता है. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ r. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वी कैन डू द क्वेश्चन इन टू वेज. You substitute r here, get the value of a, and then substitute those two values and get the answer. Or that is the easiest way, but a tricky way. Or laborious job, not tricky way, laborious job. That is a laborious job. You substitute r here, get the value of a, and substitute it. Instead of that, what I will do, I will try to find out without taking out the a value. Okay. So मुझे क्या निकालना है? Tm निकालना है. तो try to understand what I'm saying. A r to power m minus 1 t. ठीक है, तो आर का वैल्यू तो मुझे पता है, पी और क्यू के फॉर्म में है. तो ए का वैल्यू तो मैंने नहीं कैलकुलेट किया, तो क्या करूं? तो हाउ टू डू इट? यू अंडरस्टैंड क्लास व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ मेरे को. तो हम क्या करेंगे, यहां से निकाल लेते हैं. सिंस मैं यहाँ पे क्या निकाल रहा हूं, एम टर्म निकाल रहा हूं, तो मैं यहां से निकालता हूं. यहां से ए का वैल्यू क्या करता हूं, पी बाय आर लिख सकता हूं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. or try to make this whole thing there. ये पूरा चीज यहां बनाने का कोशिश करो ताकि इस पूरे चीज की जगह में पी लिख दूं ताकि ए हट जाए. देखो कैसे बनाएंगे. ए आर टू पावर m minus 1 है, प्लस n चाहिए, प्लस n माइनस n. तुम ये भी बना सकता है, नो इशू. ओके, तो आप देखो ध्यान से. m प्लस n माइनस 1 ये पूरा एक साथ होना चाहिए. ए आर टू पावर m प्लस n माइनस 1 एक साथ होना चाहिए और अलग से माइनस n है. तो अगर मैं सिर्फ इसको अलग कर दूं तो आई कैन राइट लाइक p. तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं. ए आर टू पावर m प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर टू पावर n. ठीक है, अब मैं इस पूरी चीज के लिए क्या लिख सकता हूं, p लिख सकता हूं. सो दिस p बाय आर टू पावर n. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब मैं r का वैल्यू डाल सकता हूं. तो व्हाट इज r?
p to power 1 by 2n, q to power 1 by 2n, p by q. Now you simply solve it. So p to power 1 minus 1 by 2n. I hope you understand ये मैं क्या किया क्लास, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ मेरे को. ओके लेकिन ओके आई मेड अ मिस्टेक. लेट्स नॉट डू शॉर्टकट्स. ये शॉर्टकट्स करने के चक्कर में p बाई क्यू होल टू 1 बाई 2n होल टू पर n ऐसा आएगा ना. r के जगह होल टू पर n भी है तो r के जगह मैंने ये लिख दिया. अब ये है n कट गया. अब ये हो जाएगा p बाई p टू पर हाफ q टू पर हाफ. सो p 1 माइनस हाफ q टू पर हाफ. व्हाट इज p 1 माइनस हाफ? दैट इज p टू पर हाफ q टू पर हाफ. दैट इज नथिंग बट अंडर रूट pq. एक क्वेश्चन हो गया. सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड very fatal step is this. Fatal step. If you do this thing, the question becomes very easy. Otherwise, it becomes tough. Okay, so we are not calculating the a value. Instead of that, I am doing something here so that I can write the a value here. Similarly, we need to find Tn. What is Tn? A r to power n minus 1. ठीक है क्लास. तो मुझे n minus 1 है. फिर से a यूज करो. m चाहिए. m फॉर मुंबई. तो मैं प्लस m माइनस m कर देता हूं. अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं a टू पावर m प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r टू पावर n. क्लियर? ओके, अब इसकी जगह मैं लिख सकता हूं p डिवाइडेड बाय r टू पावर m. या r टू पावर m लाओ कहां से? देखो व्हाट इज r? p बाई q डिवाइडेड बाय 1 बाय 2n होल टू पावर m. ठीक है, क्लियर? तो कितना हो गया? p बाई p बाई q होल टू पावर m बाई 2n. तो उल्टा हो जाएगा. देखो आंसर आ गया p इंटू q बाई p होल टू पावर m बाई 2n. जॉब इज डन. तो नथिंग स्पेशल इज देयर क्लास. यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द एक्सपोनेंट्स. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके क्लास, द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ s be the sum, p be the product and r be the sum of reciprocals of n terms in GP. ठीक है, ध्यान से सुनना. P be the sum of n terms in GP, P be the product of n terms in GP, and R is the sum of reciprocals of n terms in GP. Prove that P square equals to S by R whole to power n. You understand how to read this question? P is the sum of reciprocals of n terms नहीं होगा. P is the sum of n terms in GP. P is the product of n terms in GP and R is the sum of reciprocals of n terms in GP. Okay, कहीं कुछ नहीं दिया हुआ है. फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस रेशियो क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ है. ओके, तो चलो बात करते हैं. सबसे पहले s के साथ काम करें. व्हाट इज s? सम ऑफ n टर्म्स इन GP. a प्लस ar स्क्वायर प्लस डॉट 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 n टर्म्स से ar टू पावर n माइनस 1. तो इसका फॉर्मूला मुझे पहले से पता है. a r टू पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1. ओके, सच दैट मैंने मान लिया कि r इज ग्रेटर देन 1. मान लिया. ठीक है, क्योंकि इस रेशियो का कॉमन रेशियो r है. माय बेटा, इस सीरीज का जो कॉमन रेशियो r है उसको मैंने मान लिया कि कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ s. नाउ व्हाट इज p? p is a into ar square into ar cube and into ar to power n minus 1. Now how to solve this? So देखो a into a तो ये एक टर्म था, ये दो टर्म था, ये तीन टर्म था, ये चार टर्म था. ऐसे करते करते ये n टर्म था. तो a is multiplying n number of times. So can I say a to the power n? I hope you understand class. Okay, into r is in into r1 r2. So when something is into, उनका पावर्स ऐड हो जाता है 1 plus 2 plus 3 dot 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 n minus 1. ओके, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. Try to understand nicely what I'm trying to say. A is multiplied n number of times, a to power n. R is multiplied something to something. All the powers will add up. So this is a series in plus form. So we need to find the sum of this series. Now you need to check this series is in what? AP or GP. So this series in AP or GP. Solve करो. 2.
पहले माइनस करके देखो, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, दिस इज इन एपी। तो एपी का फॉर्मूला लगाना है सम का, एपी में है ये एपी, तो सम का एपी का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। अब सम का एपी का फॉर्मूला होता क्या है, व्हाट इज एस एन, एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, और n बाई 2 a प्लस लास्ट टर्म, दिस इज द फॉर्मूला। तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो यहां से यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ऐसे करते करते ये कितना टर्म्स है, तो ध्यान से देखो यहां से यहां तक कितना टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है। r स्टार्ट यहां से हो रहा है, एक कम से हो रहा है, तो यहां से एक आ रहा है, यहां से एक आया, यहां से एक आया, तो कितने बार आया, n माइनस 1 आया, क्लियर। यहां से यहां तक n टर्म्स था, 1 2 3 4 लाइक दिस। आउट ऑफ दिस यहां से r स्टार्ट हुआ है, 1 2 3, n से एक कम, दैट मींस n माइनस 1 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा r n माइनस 1 बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज n+1। सो चलो सॉल्व करते हैं, a टू पावर n r टू पावर, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2, दिस इज अ p। डन क्लास, ओके ओके, मुझे मिल गया s, मुझे मिल गया p। नाउ व्हाट इज r, r is the sum of the reciprocals of n terms. The terms are a, इसका reciprocal क्या होगा, 1 by a plus 1 by ar plus 1 by ar square plus 1 by ar cube plus dot 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 1 by ar to power n minus 1। अब मुझे पता है ये जीपी है, दिस इज जनरलाइज्ड जीपी फॉर्मूला, जीपी सीरीज, तो इसका सम का फॉर्मूला ये था, राइट। क्या ये जीपी है, तो ये तो सम है, सम ऑफ अ सीरीज है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना ये सीरीज क्या है, वेदर इट इज एपी और जीपी, देन ओनली आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला। तो पहले चेक करके देखते हैं, माइनस करके देखो, 1 बाई ए आर माइनस ए, 1 बाई ए आर स्क्वायर माइनस ए आर, कुछ नहीं आएगा, करके देखो, और डिवाइड मार के देखो, 1 बाई ए आर डिवाइड बाई 1 बाई ए, 1 बाई आर आ रहा है, 1 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 बाई आर, 1 बाई आर आ रहा है, मतलब ये क्या जीपी है, बिकॉज ऑल द रेशियोज आर इक्वल and the ratios is 1 by r, that means the common ratio is 1 by r। ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो अब अगर मैं इस सीरीज ऊपर वाले सीरीज का बात करूं तो ए आर बाई ए आर स्क्वायर बाई ए आर, तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, r। अगर इसमें डिवाइड करूं 1 बाई ए आर डिवाइड बाई 1 बाई ए, 1 बाई आर आ रहा है, 1 बाई ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 बाई ए आर, अगेन 1 बाई आर आ रहा है, तो इस रेशियो में द कॉमन रेशियो 1 बाई आर है तो ये जीपी, क्योंकि रेशियोज सेम आ रहे हैं, डिवाइड मार के देख रहा हूं तो सेम रेशियो आ रहा है, दैट मींस इट इज जीपी, बट कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे, 1 बाई आर है, ठीक है ना। तो सम ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर n माइनस 1 बाई कॉमन रेशियो माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे ये लगेगा फर्स्ट टर्म, अब कॉमन रेशियो, ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, ओके। बट यहां पे कॉमन रेशियो है क्या, 1 बाय आर है, तो सिंस आर इज ग्रेटर देन 1, कैन आई से 1 बाय आर इज लेस देन 1, तो यहां पे जो कॉमन रेशियो है 1 बाय आर है, वो वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, because there are two formulas of sum, one formula is a r to power n minus 1 by r minus 1, so don't read it as a r to power, तुम इसको ऐसे पढ़ो, first term common ratio to the power n minus 1 by common ratio minus 1, दूसरा first term 1 minus common ratio to the power n by common ratio minus 1। ये फॉर्मूला तब काम करता है जब कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है, ये फॉर्मूला तब काम करता है कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है, ओके। जब मैंने ये किया तो मुझे पता है इसका कॉमन रेशियो r है, ये मैंने खुद से मान लिया कि r ग्रेटर देन 1 है, बिकॉज आई डोंट नो द r वैल्यू, ओके। तो मैंने मान लिया कि कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1। जब मैं इस सीरीज को सम कर रहा हूं तो पहले मुझे चेक करना पड़ रहा है ये सीरीज एपी है कि जीपी है, तो मैंने चेक कर लिया, डिवाइड मार के ये सीरीज जीपी है, डिवाइड मार के आया क्या, 1 बाय आर आया, दैट मींस इसका जो कॉमन रेशियो 1 बाय आर है। तो अगर मैंने पहले मान लिया कि कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो 1 बाय आर लेस देन 1 होगा, आर अगर ग्रेटर देन 1 तो 1 बाय लेस देन 1 होगा, मतलब लेस देन 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब now the question comes in mind, sir, is it necessary that we have to take r greater than 1? No, you can take r less than 1 also, चलेगा।
तब यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 1 माइनस आर टू पैन बाय 1 माइनस आर। तो अगर तुमने यहाँ पे आर लेस देन 1 लिया होगा तो यहाँ पे आर 1 बाय आर ग्रेटर देन 1 आएगा, तब तुम यहाँ पे उल्टा वाला लिखना 1 बाय आर टू पैन माइनस 1। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लास। सो दिस इज लेट्स सॉल्व दिस लिटिल बिट, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। कितना हो जाएगा आर माइनस 1, ये हो जाएगा आर बाई ए, इधर हो जाएगा आर टू बाय एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ओके, नीचे और ये आर ऊपर चला गया और यहां से क्या आ जाएगा आर टू पावर एन आ जाएगा, एलसीएम लेने से आर टू माइनस 1, ये आर माइनस 1। ओके, तो ये हो गया व्हाट इज आर, फाइनली व्हाट इज आर वी गॉट आर टू पावर 1 माइनस एन बाई ए आर टू पावर एन माइनस 1 divided by r minus 1. Okay, so we got s, we got p, we got r. Now we try to solve these things. मैं देखूंगा कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. This is my final agenda. Okay, class. I hope I made you understand the concept of ratios, common ratios, and greater than 1, less than 1 concept. So मुझे क्या चाहिए, s by r चाहिए. Let's start with the RHS. s by r whole to power n चाहिए, ठीक है ना. तो पहले मैं s by r निकालता हूं, बाद में होल टू पावर n करूंगा, ठीक है. तो चलो s by r निकालते हैं. s by r है क्या, तो पहले मैं s by r निकालता हूं. पहले RHS में नहीं जाता हूं. व्हाट इज s, a r टू पावर n माइनस 1 by r माइनस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट इज r टू पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय a r टू पावर n माइनस 1 by r माइनस 1. तो जब ये डिवीजन इनटू में पलटेगा तो क्या होगा भैया, a r माइनस 1 डिवाइडेड बाई r टू पावर 1 माइनस n r n माइनस 1. तो ये कट गया, ये कट गया, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर. ओके, और ये ऊपर हो जाएगा r n माइनस 1, उल्टा जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस n माइनस टू माइनस प्लस n, तो ये हो जाएगा s बाई r. अब मुझे RHS है क्या, RHS है s बाई r होल टू पावर n है, मतलब क्या आ जाएगा a टू पावर 2n r टू पावर n इंटू n माइनस 1. अब LHS क्या है, LHS है p स्क्वायर. तो व्हाट इज p, इसको स्क्वायर करो तो a टू पावर 2n r टू पावर n माइनस 1 n इंटू n माइनस 1. ये पावर नीचे का 2 कर जाएगा, खुद से करो. बोथ आर इक्वल, LHS इक्वल्स टू RHS. प्रूव. ओके क्लास, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. Okay class, the next question, I directly solve the question on the board. I did not try to do it with you all, just to make it short. See, the question looks very different, but it's not so different. It's a simple one. Show that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the ratio divide मानना है, sum of the terms from n plus 1 to 2n terms is 1 by r to n. मेरे पास एक GP है जहां पे n terms तक तो जाने हैं. So let the GP is T1, T2, Tn. यहां तो जाना है. फिर इसके बाद n plus 1 से n plus n जाना है, मतलब 2n, मतलब t plus 1. फर्दर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, t of t plus 1, t of n plus 1, n plus 2, ऐसे करते 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 n plus n 2n जाएगा. मतलब स्टार्ट हो रहा है 1 से GP और खत्म हो रहा है 2n नंबर ऑफ टर्म से. तो यहां से तक 2n टर्म से, यहां से यहां तक क्या है, कितना टर्म से, n टर्म्स. 1 से स्टार्ट हुआ, अंत तक गया. और यहां भी देखो प्लस 1 से स्टार्ट हुआ, प्लस 1 प्लस 2 ऐसे करते तो प्लस है. तो यहां से यहां तक भी n टर्म्स है. डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? ओके, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रेशियो, व्हाट इज द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, व्हाट इज s1 t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट tn. ओके, मैंने मान लिया कि मैं जो जीपी के साथ डील कर रहा हूं उसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो r है, सच दैट r ग्रेटर देन 1. मान लिया खुद से. You can take r less than 1, you will get the answer. ओके, तो व्हाट इज s1 t1 प्लस t2. तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म ये रहा. सीरीज में सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इज द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो टू द n नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 बाय r माइनस 1. ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द फॉर्मूला. व्हाट इज sn, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 बाय कॉमन रेशियो माइनस 1. तो फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, यहां से कितना टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, माइनस 1 बाय कॉमन रेशियो माइनस 1. ओके, नेक्स्ट s2, सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n प्लस n टू 2n. दैट इज व्हाट इज s2, यहां से यहां तक का एडिशन, t of n plus 1, t of n plus 2 plus t of tn.
तो इस सीरीज का भी कॉमन रेशियो आर ही होगा, क्योंकि ये पूरी सीरीज का कॉमन रेशियो आर है, और यहां से अगर कॉन्टिन्यूसली है, यहां से भी अगर मैं बोलूं इस सीरीज का कॉमन रेशियो आर है, इसका मतलब क्या, ये बाय ये आर, ये बाय ये, दिस डिवाइड बाय दिस इज आर, दिस डिवाइड बाय दिस इज आर, दिस डिवाइड बाय दिस इज आर, दिस डिवाइड बाय दिस इज ऑल्सो आर, बिकॉज दिस होल थिंग इज इन जीपी। तो इस सीरीज में कॉमन रेशियो क्या होगा, दिस डिवाइड बाय दिस, दैट इज आर ओनली। तो इसका भी कॉमन रेशियो आर है, लेकिन सम का फॉर्मूला लगाने के फर्स्ट टर्म लेना पड़ता है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, टी ऑफ एन प्लस वन, कॉमन रेशियो इज गिवन आर ओनली, आर टू पर नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहां से तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एन, स्टार्टिंग विद प्लस वन एंडिंग विद प्लस एन, एन प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसे प्लस एन, तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन आर वन। व्हाट इज टी ऑफ एन प्लस वन, तो जनरलाइज टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू पावर एन माइनस वन, क्योंकि ये एन प्लस वन इज द एन प्लस वन टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का ये एन प्लस वन टर्म है, तो इस एपी का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म दैट इज ए, फर्स्ट टर्म आई टेकन एज ए आर टू पावर एन प्लस वन माइनस वन, वो यहां पे लिखा है ए आर टू पावर, यू अंडरस्टैंड कहां से आया, ये आया जनरलाइज जीपी से सॉल्व करके आया। So try to understand what I'm doing, r to power n plus 1 minus 1, n कर दिया, ये आ गया आंसर। अब दोनों को डिवाइड मार दो, सब कुछ कर दिया, 1 by r to power आंसर आ गया। The only thing where the student get confused is ये r, इस सीरीज का r, इस सीरीज का r सेम क्यों है, ये दोनों अलग अलग सीरीज नहीं है, ये दोनों सेम सीरीज है, उसका दो अलग अलग पार्ट है, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी नंबर्स इन बिटवीन। हाँ, कोई अगर ऐसा बोलता है, जैसे हमने जीपी में क्वेश्चन किया था, एपी में क्वेश्चन किया था, सम ऑफ ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ इवन नंबर्स, उसमें अलग अलग कॉमन डिफरेंस था। यहां पे सम ऑफ ऑड नंबर्स सम ऑफ इवन नंबर्स नहीं बोला है, यहां पे ये पूरा एक जीपी है, जीपी में फर्स्ट 5 टर्म्स, सेकंड 5 टर्म्स, कोई टर्म्स हटा हटा के नहीं बोला है। अगर बोलता कि T1 T3 ये हटा दिया, T1 T3, देन कॉमन रेशियोज अलग अलग होते। दिस इज टू अंडरस्टैंड क्लास, ओके। Let's go for the next one. Okay class, the last question of this video. Okay, GP is yet lots of questions to go for it, okay. But for this video I'm ending here. Find the sum of the n terms of the sequence. ये नहीं बोला गया है कि GP है कि AP है, एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है, जिसका सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, जिसका जनरल टर्म दिया हुआ है an is 3 to power n plus 5. General term is given to you, okay. So general term is what, 3 to power n plus 5n, इसका सम निकालना है, तो सम क्या होगा, a1 plus a2 plus a3 plus डॉट 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 an, ये है सम, ठीक है। जहां पे an दिया हुआ है तो a की जगह 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, चलो डालते हैं, a1 3 to power 1 plus 5 plus a2, 3 plus 5 8 मत लिख देना, ठीक है ना, छोड़ देना, 3 square plus 5 into 2, 5 to the 10 मत लिख देना, ऐसे छोड़ देना, क्योंकि 5 सब में आएगा कॉमन, plus a3 3 to power 3 plus 5 into 3, okay, plus a4 3 to power 4 plus 5 into 4, ऐसा करते 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 3 to power n plus 5 into n आएगा। तो यहां से यहां तक n टर्म्स है, हर एक टर्म में देखो 3 वाला टर्म अलग है, सो पहले 3 वाला टर्म को एक साथ देखो, 3 plus 3 square plus 3 cube, ऐसे करते करते 3 to power n प्लस इन सब टर्म से 5 कॉमन आ रहा है, सी टेक आउट 5 कॉमन, क्या बचा 1 plus 2 plus 3 plus 4 डॉट प्लस n। अब इसका सम निकालो, तो दिस इज द सम ऑफ अ सीरीज। नाउ आई डोंट नो वेदर दिस सीरीज इज एपी और जीपी, डिवाइड करके देखते हैं और माइनस करके देखते हैं। 3 स्क्वायर पावर वाला है, तो पावर वाला बेसिकली जीपी होता है, 3 स्क्वायर बाय 3 3, 3 क्यूब बाय 3 स्क्वायर 3, तो कॉमन रेशियो सेम, सो दिस इज जीपी सीरीज। तो सम ऑफ जीपी सीरीज इज व्हाट, so here the common ratio is 3. 3 is greater than 1. The first term r to power r is what, 3 to the power number of terms n minus 1 by r minus 1 plus 5. This is also a sum of a series. अब मुझे ये सीरीज को देखना पड़ेगा, ये पी है कि जीपी है, तो 2 by 1 is 2, 3 by 2 is 1.5, कॉमन रेशियो सेम नहीं है, 2 minus 1 1, 3 minus 2 1, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो नंबर ऑफ टर्म्स एपी का सम है n by 2, नंबर ऑफ टर्म्स इज n, कैसे है, यहां से यहां तक n नंबर ऑफ टर्म्स है,
हर एक टर्म से एक एक टर्म आया तो n टर्म्स हुआ, ये n टर्म 1 2 3 ऐसे करते करते n टर्म्स है, तो एक बार 5 1, 2 बार 5, 3 बार 5 ऐसे करके 5 बार आए, n बार आएगा, सो n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज n. Okay, so this is the final answer. Okay, this is your sum of n terms of an AP. Finally solve कर देना, 3 minus 1 is 2. Okay, so try to understand whenever you see a particular series we have with sum of a series, first you need to see whether the series is AP or GP. यहाँ पे तो AP GP पता करना पड़ेगा, तब तो तुम sum का फॉर्मूला लगाओगे. Okay, that's all class. Thank you very much.